Morning class 10. We have completed the chapter 1 in history, glorious history of India. We have already completed, and we will complete it in civics also one chapter in the month of April. So both the chapters have been completed, and I will send you the question answers link in your WhatsApp groups of the last chapter we have discussed, that is history. And before that we have already done in civics democracy, we have already completed in the month of April. So both two chapters has been completed, and you should complete your work also. So today we are going to start water resources, chapter 8, water resource in geo. That is, this is your geo first. So this is your geography first chapter. Now we will start with the water resource. So first of all, what is the meaning of resource? To whom we call it resource? And or in any simple language, what is the meaning of resource, or what do you understand by resource? That you have been learning from class 6 onward, that resource, then what is resource? Again, I am telling you in a simple, very simple language so that you should understood, and you should not forget anything which satisfy humans need. So anything which satisfy human needs are called as resource. Clear? So again I'm writing down anything which satisfy human needs are called as resources. So anything, कुछ भी हो जो humans की needs को fulfill करता हो, humans की कोई भी needs हो उसको fulfill करता हो, तो वो क्या बन जाएगा? वो resources बन जाएगा. For example, right now online classes is going on. So now what is the main need is mobile, laptop, internet connections. So this is the need we need it, and now it's turned to as a resources, very important resources for online classes. So anything which are very needed by the people of by people's, take it as a food, take it as a clothes, books, pen, these all are being called as resources. For example, when you are coming from school, you use these vehicles, buses. So these are also resource. So water we are needing for drinking purpose, that is also resource. Air is also resource. So again, anything which satisfy human needs are called as resource. So today we are going to discuss about our water resource. Now, introductions. What is such a precious gift of nature which provide movement to all the activities on plants, जो भी है अर्थ के अंदर जो भी planets हैं, on planet Earth फिलहाल that Earth having water. So we know that we are living on the planet Earth. So water is a precious gift, very important gift, बहुत ही important है हमारे लिए. कुछ भी एक्टिविटीज़ जो भी होती है उससे वाटर के थ्रू होती है. वाटर ऐसा कोई भी एक्टिविटी बहुत मुश्किल होती है जिसमें हम कहेंगे वाटर की यूज़ नहीं होती है. सो देयर इज 71% ऑफ वाटर इन द अर्थ एंड 29% लैंड. सो ओवरऑल द अर्थ इज हैविंग 71%, that is, this is water, and 29% is land. Okay, so major portion is the earth is covered with water, and that 29% is land on the earth's surface. Now 97% of this water, we will move to the water again. So we are having 71%. 71% we are using. So 71%
what is it? Water on the earth. So it has been talking about this 97 means 97% of water, that is of 71%. So take it 71% as 100%. So 71% as 100%. मान लो कि 71 जो है हमारा वाटर प्रेजेंट है अर्थ के अंदर, तो उसको 71 को एज अ 100% मतलब हमारा 100% हो गया. 71 इक्वल्स टू 100%. अभी इसी 100% का 97% जो हो गया, दैट इज 97% ऑफ दिस 71 को हमने 100% में डिस्कस करो, तो इसी 71 का 100% और इसी 71 का 97% जो है वो क्या है? वो है हमारा. तो इसी तरह से जो ये 97 है, दैट इज़ हमारा जो 71% वाटर है, तो 71% वाटर जो है किसका बताया जा रहा है? 71% हमारा टोटल वाटर है, तो 71 को हमने कन्वर्ट किया था 100% में, तो 100% में से कहा जा रहा है 97 जो है हमारा, 97 जो है हमारा वो क्या है? 97 इस 100% का 97, और ये 100% किस क्या है हमारा? 71% ऑफ वाटर. तो इसी तरह से अब यहाँ पे देखो कि 97% जो है हमारा 71 का 91%, 71 का 97% जो है ये सलाइन वाटर है, जो हमें कहाँ मिलता है? ओशंस में मिलता है. कहाँ मिलता है? ओशंस में. और बचा कितना इसमें से 100% का? तो 100% में माइनस कर देंगे तो कितना बचता है? 3%. ठीक है, तो ये 3% क्या मिल गया कि 3% जो है इज़ अवेलेबल फॉर अस. तो 97 तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते, सोच लो. तो क्या हो रहा है कि 97 तो हमने ये यूज़ ही नहीं कर पा रहे, 97% हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो हमारा बचा कौन सा? हमारा बचा 3% ओनली. तो 3% जो वाटर है, 3% ऑफ 71. ठीक है, तो 3% ऑफ 71 जो परसेंट है हमारा, उसका 3% जो है वही हमें सिर्फ मिल रहा है पूरी प्लैनेट को. मतलब अर्थ जितनी है उस पूरे प्लैनेट में जितने सारे ह्यूमंस हैं, द ह्यूमंस बींग्स एंड एनिमल्स दे यूजिंग, ये 3% जो है उसी पे डिपेंड है. लेकिन ये 3% भी देखोगे अभी कि ये कितना ज़्यादा और कहाँ कहाँ से जा रहा है. सो आउट ऑफ दिस पार्ट 69 वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स. अब ये 3% को वापस 100% में कन्वर्ट करो. इस 3% को किस में करना है? 100% में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 3% जो है अर्थ में अवेलेबल है फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स जो भी है वो. लेकिन इस 3% को वापस आपको 100% में कन्वर्ट करो और यही हमें मिल रहा है. लेकिन इसका भी क्या बताया जा रहा है? क्या कहा जा रहा है कि 69% जो है, मतलब 3% को हमने 100% किया, उसके बाद इस 100% का 69% जो है वो क्या है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर है. किस में? वो ग्लेशियर्स में है. अब बचा कितना हमारा? 30%. जो 30% है ये है इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. तो 69 हो गया जो ग्लेशियर्स है, 69 क्या है? ग्लेशियर्स है. 30 क्या है? अंडरग्राउंड वाटर है. 30% क्या है? अंडरग्राउंड वाटर है. ये अंडरग्राउंड वाटर हो गया 30%. तो बचा कितना हमारा? मिसिंग कितना हो गया? 1%. रिमेनिंग कितना हो रहा है? 1% ही हो रहा है, क्योंकि 69 हो गया, ये 30 हो गया, और 1 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा. 100 किसका हो जाएगा? ये 3% का. ठीक है, तो ये 1% जो है, अब ये 1% कहा जा रहा है कि द रिमेनिंग 1% is used for drinking purpose, irrigation purpose and various economic activities. For example, इंडस्ट्रीज़ में वाटर यूज़ होता है, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज़ प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया. तो मतलब इस पूरे 103 को हमने 100% में कन्वर्ट किया. 69% हमारे ग्लेशियर्स में चला गया, 30% हमारा चला गया अंडरग्राउंड वाटर. तो हमारे पास बचा कितना? पीने लायक, एग्रीकल्चर के लिए, ड्रिंकिंग के लिए और अदर पर्पस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए 1%. तो सोचो कि आप पानी कितना वेस्ट करते हो और हमें मिलता कितना है? 1% ऑफ
दिस, इस 3% को कन्वर्ट किया हमने 100% में, और इसी 100% में से 1% हमें मिलता है ह्यूमन बींग्स को वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो थिंक अबाउट दैट हाउ मच वाटर यू हैव बीन डिस्ट्रॉइंग और एक्सप्लॉइटिंग. कितना ज़्यादा पानी बर्बाद किया जाता है हमारे देश में, करते हैं अनजाने, उनको पता ही नहीं है कि हमारे जो लेवल है पानी की कितनी कम है और कितना ज़्यादा उन्हें लगता है पानी की कोई कमी नहीं है. बट वर्ल्ड में धीरे धीरे स्कैसिटीज़ बढ़ रही है, पानी की कमी हो रही है. अब यहाँ पे देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर इन इंडिया अमाउंट 1869 बिलियंस क्यूबिक मीटर है. आउट ऑफ विच, उसमें से ये हमारे कहा गया यूजेबल वाटर जो हम यूज़ करते हैं, उसमें से ओनली 11 मतलब 1123 बिलियंस जो है इज ब्रॉट इनटू यूज़. हमारे इंडिया में हमें इतना पानी मिलता है, यूजेबल है, अवेलेबिलिटी है, लेकिन उनमें से हम लोग कितना यूज़ कर पाते हैं उसे 1123 बिलियंस मीटर क्यूब. आउट ऑफ दिस अगेन यूज बाय मैनकाइंड, आउट ऑफ दिस वाटर यूज बाय मैनकाइंड कितना 690 बिलियन मीटर्स इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर. तो इसी में से कि जो मैनकाइंड यूज़ करते हैं कितना, अब ह्यूमन बींग्स मतलब कितना यूज़ कर रहे हैं इसमें से, तो 690 बिलियन मीटर क्यूब्स ये हमारा सरफेस वाटर है. एंड 433 बिलियन मीटर क्यूबिक मीटर इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. तो ये सरफेस वाटर है जो हमें जैसे रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड हो गया, और अंडरग्राउंड वाटर जो आपको पता है कि जो लेवल है वाटर बेड जो है हमारे लैंड के नीचे जो अंडरग्राउंड होता है, ट्यूबवेल से हम पानी निकालते हैं, तो वो हो गया हमारा अंडरग्राउंड वाटर. तो ये दोनों है अंतर इसमें कि जो ह्यूमन बींग्स जो यूज़ कर रहे हैं, तो 690 जो है वो सरफेस वाटर अवेलेबल है और 433 जो है हमारा अंडरग्राउंड वाटर है. सो इन इंडिया इन द ईयर 2000 देखा गया द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर वॉज 634 मिलियन क्यूबिक मीटर, जो इंक्रीज हुआ विच वॉज इंक्रीज टू अबाउट इन कहा जा रहा है कि ये 2000 का था. अब ये जो अगर हम 2025 में अभी कितना है हमारा 2020 विद इन 5 ईयर्स कि ये जो है 634 जो है 34 वो आगे बढ़ के कितना हो जाएगा 1023 मिलियन क्यूबिक मीटर. अब इतना बढ़ रहा है क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी नीड्स बढ़ रही है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को पानी चाहिए. सो ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, और इल इफ़ेक्ट्स मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी जितना यूज़ करते हैं उसे बर्बाद भी करते हैं. फिर साथ में ग्लोबल वार्मिंग ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो, एडुकेट जो है वाटर मैनेजमेंट, पानी को हम बचाने की कोशिश करते ही नहीं हैं. कंजर्वेशन हैज़ बीन बिकम द नीड ऑफ. तो आज हमारे सबसे इम्पोर्टेंट क्या बन गया है कि हम पानी को अच्छे से बचाएं, कैसे प्रिजर्व करें, और उसे करने के लिए क्या क्या मेजर्स करना चाहिए, ये सभी हमारे लिए आज बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर बन गया है. क्योंकि इन द वर्ल्ड दे आर मेनी, इन इंडिया ऑल्सो दैट दे आर मेनी स्टेट, and in that state there are many districts which has been declared that there is no water, drinking water is not there, so they have been depend on the other state for their supply of water. So imagine if there will be no water, then what you will and we will do, what the humankind will do, how there will be irrigations, and then industries, how they're going, industry will run. So it's very important now, it's very important to conserve, manage water management and conservation. तो हमें सबसे पहले बचाव करनी है और उसको फिर कैसे यूज़ करना है कि हमें पानी जो है फ्यूचर तक मिलता रहे. तो हमने अभी वापस एक बार देख लेते हैं बेटा कि ये वापस याद रखना है कि हमारे पास वर्ल्ड में 71% जो है हमारा वाटर है, 29% हमारा लैंड है. अब 71 का कन्वर्ट करते हैं 100%, तो हमारा उसी में से 100% में से आता है कि 97% जो हमारा वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ सलाइन वाटर, जो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते.
तो जब 97% सलाइन वाटर है, ओशन वाटर है, तो 97 में बचा 3%, ठीक है ना। तो ये 3% जो है हमारा वो हमें अवेलेबल है। लेकिन अब इस 3% को अगर हम वापस से 100% कन्वर्ट करते हैं तो क्या देखा गया कि 69% जो है वो ग्लेशियर्स है। उसके बाद 69 ग्लेशियर्स, उसके बाद बचा 30%। 30% क्या कहा गया कि 30% जो है अंडरग्राउंड वाटर है। फिर तो 39 और 60 हो गया हमारा 99%, रिमेनिंग 1%। जी ये 1% है, कहा जाता है 1% इज़ यूज्ड। तो ये 1% जो है रिमेनिंग वी आर यूजिंग इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग, इरिगेशंस। तो ये 1% यूज़ किया जा रहा है ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। फिर कहा गया इंडिया में जो अवेलेबल है वाटर अमाउंट वो 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। तो ये तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन हम उसे कितना अपने यूज़ में लेते हैं। अवेलेबल है लेकिन फिर भी हम उसमें कितना सा यूज़ में लेते हैं हमारे डेली लाइफ में, उसको हम लेके आ पाते हैं 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर। आउट ऑफ विच मैनकाइंड जो यूज़ करता है वो कितना बताया गया 690 बिलियन क्यूबिक मीटर्स इन द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर है। फिर सरफेस वाटर में जैसे मैंने कहा रिवर्स, लेक, पॉन्ड, और 433 जो है अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है। तो 2000 में देखा गया कि 634 मिलियन क्यूबिक मीटर्स जो था वो यूज़ किया गया, और जो इंक्रीज़ उससे बढ़ के 1023 मिलियन क्यूबिक मीटर्स इन द नियर फ्यूचर, दैट इज़ 2025 में ये होने वाला है। तो ये क्यों होने वाला है, ऐसा क्या हो गया, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एंड इल इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, गर्मियाँ बढ़ी हैं, तो इवापोरेशंस, इस तरह से देयर डिस्ट्रक्शंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर ऑल्सो, पानी गंदा हो रहा है, और इसके तरह से मिसमैनेजमेंट हो रहा है, पानी को सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी क्या है हमारा वाटर मैनेजमेंट, कि हम पानी को सही से मैनेज करें और उसको कंजर्व करें, बचाएं, कि जितना है हमें उससे बचाना है, क्योंकि अभी हमारे लिए यही सबसे बड़ा नीड है, ठीक है। तो अब तक तो अभी ये हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे जो इंट्रोडक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि इंट्रोडक्शन समझ में आ जाए तो इजीली आपको फिर बाद में चैप्टर जो है इजी हो जाएगा। तो होप आपको इंट्रोडक्शन जो है समझ में आया होगा, ठीक है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वी विल गो थ्रू वाटर मैनेजमेंट, और इसे आप एक बार वापस से समझ लेना ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो, बेसिक जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि 71 इक्वल्स टू 100 में इसमें कितना गया 97, फिर वापस 3% को 100 में किया हम लोगों ने तो 69, देन 30 इक्वल्स टू 99% जो है हमारे लिए यूज़ में नहीं है, फिर 1% ही जो है हमारा यूज़ में हो रहा है। तो इसी तरह से आप जो है इसको वापस एक बार देखो, समझ लो। नेक्स्ट में हम लोग शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट विद वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। टिल देन टेक केयर, and I will send you the question answers of chapter 1, and that link I will send you through WhatsApp. So try to complete the question answers sooner, and later we will ask you to submit your question notebook for corrections.